we have seen that what is computer, okay, what is information technology, the advantages of computer and disadvantages of computer. Then the classification of computers. Okay, we have started with this, na, classification of computers. The computers are divided into different categories depending upon their size, efficiency, their memory. Okay, so it is divided into various types. Based on working principles and based on size and data processing power. Okay, so based on working principles, क्या divided है analog computers, digital computers and hybrid computers. Okay, and based on size and its data processing power, supercomputers, mainframe computers, mini computers, workstations and microcomputers. Okay, so we have seen that what is analog computer. Okay, that takes continuous measurements. Examples are speedometer of a car, thermometer. Okay, are the example of analog computers. Digital computers that we are using in a day-to-day life, that is digital computer only. Okay, then hybrid computer is a combination of both analog computers and digital computers. Okay, these are the examples of hybrid computers, like heartbeat, to measure the heartbeat of the patient. Okay, that is hybrid computers, because both the features are used, analog as well as digital. Okay, devices used in petrol pump, yeah, are the example of this hybrid computer only. Okay, today we will see digital computers. Okay, see this chart. We have covered analog, digital and hybrid. Okay, now we will see supercomputers, mainframe computers, workstations and microcomputers. Supercomputers, mainframe computers, digital mini computers and microcomputers. Okay, the mini computers means it is divided into workstations computers and server computers. Okay, and microcomputers में desktop computers आएगा हमारा, लैपटॉप जो हम लोग यूज करते हैं, और हैंडल डिवाइसेस. Okay, so now we will see this one by one. What is supercomputer? See, supercomputer used for the general purpose only. It is general purpose computer only, but it is the fastest and largest computer. सबसे ज्यादा फास्ट और ये लार्जेस्ट. सी द साइज ऑफ दिस कंप्यूटर. ठीक है, these are the fastest and largest computer. तो ये दिस इज बेसिकली यूज फॉर दी, हम लोग हमारे डे टू डे लाइफ में वी आर नॉट यूजिंग दिस कंप्यूटर एट होम. ठीक है, ये डिफेंस पर्पस के लिए यूज होता है, वेदर फोरकास्ट करने, ठीक है, वेदर रिसर्च करने के लिए, और कंप्यूटर जनरेटेड मूवी, ये सब के लिए सुपर कंप्यूटर्स आर यूज. ठीक है, बिकॉज सुपर कंप्यूटर में क्या होता है, यू कैन मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं उसमें. ठीक है, अभी प्रोसेसर क्या है, इट इज द हार्डवेयर डिवाइस. ओके, विच इज प्रेजेंट इन द कंप्यूटर. तो प्रोसेसर, इसमें मल्टीपल प्रोसेसर का एडवांटेज ये है कि स्पीड फास्ट करने के लिए. ठीक है, अभी डिफरेंट प्रोसेसर है, डुअल कोर, क्वाड कोर. ठीक है, तो प्रोसेसर जो हार्डवेयर डिवाइस है, उसका एडवांटेज ये है, वो स्पीड बढ़ाता है कंप्यूटर का. ठीक है, जितना बेटर प्रोसेसर होगा उतना अच्छा स्पीड रहेगा कंप्यूटर का. तो इन सुपर कंप्यूटर, ठीक है, इन सुपर कंप्यूटर वेरियस प्रोसेसर आर देयर, मल्टीपल प्रोसेसर आर देयर. ठीक है, it is used for the supercomputer use thousands of processor at the same time. ठीक है, प्रोसेसर एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर में प्रेजेंट होता है. तो सुपर कंप्यूटर में थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर होते हैं. ठीक है, अभी सी जो हम लोग अपना कंप्यूटर, वी आर यूजिंग कंप्यूटर इन होम ना, तो उसमें क्या रहता है, एक ही प्रोसेसर होता है. कोई भी क्या मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं? नहीं, एक ही प्रोसेसर होता है. बट सुपर कंप्यूटर में मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं. ठीक है, इसलिए इसका स्पीड ज्यादा होता है सुपर कंप्यूटर का. कहाँ पे यूज होता है ये? वेदर रिसर्च के लिए. ठीक है, जो वेदर फोरकास्टिंग होता है, ये सब के लिए, डिफेंस पर्पस के लिए सुपर कंप्यूटर्स आर यूज. ठीक है, हियर आल्सो एग्जांपल्स आर गिवन. यूज फॉर न्यूक्लियर वेपन, वेदर फोरकास्टिंग, साइंटिफिक सिमुलेशन,
oil and gas exploration or in large companies. Okay. This is a figure of this supercomputer. See, mainframe, now mainframe computer. Okay. Mainframe computer क्या है? Less powerful है than supercomputer. It is powerful, but if you are comparing it with supercomputer, these are less powerful and cheaper than supercomputers. Okay. तो ये कहाँ पे यूज होता है? दिस इज यूज फॉर द मेन फ्रॉम कंप्यूटर यूज है साइंटिफिकली एज वेल एज बिजनेस एप्लीकेशंस, दोनों के लिए यूज होता है। तो मेनली फॉर एग्जांपल क्या है, एयरपोर्ट में यूज होता है, ये रेलवे रिजर्वेशन में यूज होता है। ठीक है, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में दिस मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर यूज। फॉर एग्जांपल सी, जो एटीएम मशीन हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, दैट एटीएम मशीन इज एग्जांपल ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर ओनली। ठीक है, जो एटीएम मशीन है that is connected with the bank, right? तो एटीएम मशीन जो है वो एग्जांपल है मेन फ्रेम कंप्यूटर का। ठीक है, तो मेन फ्रेम कैन रन मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एट द सेम टाइम। इसमें मल्टीपल इंस्टेंसेस किसके होते हैं? ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? एनी आइडिया स्टूडेंट्स, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? सी, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है ना। इट इज सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर? इट इज सॉफ्टवेयर, राइट? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? सिस्टम को स्टार्ट होने के लिए जो नेसेसरी जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो उसके रिक्वायरमेंट्स होते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, राइट? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या एग्जांपल है तुम्हारा? वर्ड हो, सॉरी वर्ड नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हारा क्या होगा? विंडोज हो गया। ठीक है, जो विंडोज हम लोग इंस्टॉल करते हैं ना, विंडोज 8 और विंडोज 10 जो भी है, ठीक है, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम स्टार्ट होगा नहीं होगा, राइट? अभी तुम लोग देखे होंगे ना, सिस्टम जब स्टार्ट होता है तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो? ठीक है, विंडोज 7 है या विंडोज 8 है, कुछ भी विंडोज 10 है, वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है वो। ठीक है, तो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हारा सिस्टम स्टार्ट नहीं हो सकता। तो मेन फ्रेम में मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर देयर। ठीक है, अब प्राइमरली कहाँ पे यूज होता है? ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होता है फॉर क्रिटिकल एप्लीकेशंस। ठीक है, बल्क डेटा प्रोसेसिंग, जहाँ पे बल्क अमाउंट ऑफ डेटा प्रोसेस करना होता है, वहां पे मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज होता है। ठीक है, जहाँ पे डेटा का रिक्वायरमेंट ज्यादा है। ठीक है, इट यूजेस फॉर ऑनलाइन डेटा स्टोरेज, डेटा भी स्टोर करता है ये, ऑनलाइन डेटा स्टोरेज। ओके, मेन फ्रेम यूज फॉर ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग इन बैंकिंग, एयरलाइंस एक्सेट्रा। ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग इन बैंकिंग, एयरलाइंस। ठीक है, लाइक वन मोर एग्जांपल मैंने बताई एटीएम का। ठीक है, वो एग्जांपल है मेन फ्रेम कंप्यूटर का। सी, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर देयर। ठीक है, तो उसका स्पीड भी फास्ट होगा। ठीक है, स्पीड क्या होगा? उसका स्पीड इज ऑल्सो फास्टर, राइट? नाउ वर्क स्टेशन। ठीक है, वर्क स्टेशन क्या है? ये डेस्कटॉप कंप्यूटर जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, अपने घर में जो यूज करते हैं, उसकी तरह ही दिखाई देता है ये। ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर दैट इज अ मोर पावरफुल प्रोसेसर, ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है इसमें। प्रोसेसर क्या है? एक हार्डवेयर डिवाइस है। हाँ, सी, मेरे सिस्टम का प्रोसेसर क्या है अभी? हाउ कैन यू चेक द मतलब प्रोसेसर ऑफ योर सिस्टम? हाँ, दिस पीसी, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज। सी, तो डिवाइस नेम है, डिवाइस स्पेसिफिकेशन दिया है, यू कैन चेक योर सिस्टम स्पेसिफिकेशन। डिवाइस नेम डेस्कटॉप जो भी है। प्रोसेसर कौन सा मेरे में? इंटेल कोर 2 डियो। ठीक है, तो वैसे बहुत सारे ये होते हैं इसमें, कोर 2 हो गया, ठीक है, डुअल कोर या क्वाड कोर। कोर 2 है मेरे में, क्वाड मतलब 4 हो जाएगा। ठीक है, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, बहुत सारे प्रोसेसर है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ, जैसे हमारे वर्जन नहीं चेंज होते,
फोन का वर्जन नंबर तुमको पता होगा ना, वर्जन नंबर चेंज होते हैं, एंड्रॉइड वर्जन नंबर, ये मोबाइल फोन हम लोग जो यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे वर्जन नंबर में इम्प्रूवमेंट चेंजेस आता है, मतलब क्या हो रहा है, उसमें कोई कुछ न्यू न्यू फीचर्स ऐड हो रहे हैं। अभी लाइक जूम हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जूम का पहले वर्जन 5 था, फिर जूम ने क्या किया, जो जो इश्यूज अराइज हुए, ठीक है, उसको क्या किया, उसने उसको रिजॉल्व किया, और रिजॉल्व करने के बाद उसको अपना भी न्यू जो है, रिजॉल्व करने के बाद जो न्यू, जो क्या बोल सकते हो तुम, सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो अभी उसको रिलीज करना है। तो वो 5.1 नहीं रखेगा, अभी 5.2 जो भी चेंजेस लाएगा वर्जन में। तो जब भी वर्जन नंबर चेंज होता है, मीन्स में कुछ न्यू फीचर्स ऐड हुए, या तो फिर नेक्स्ट थिंग ये है क्या, जो भी इश्यूज था वो रिजॉल्व हुआ है उसमें, ठीक है। तो प्रोसेसर एक हार्डवेयर डिवाइस है, यू कैन सी तुम्हारे सीपीयू में रहता है ये हार्डवेयर डिवाइस, प्रोसेसर। हार्डवेयर डिवाइस में जो तुम उसको टच कर सकते हो, हाँ, टच एंड फील कर सकते हो, देख सकते हो, दैट इज हार्डवेयर डिवाइस, ठीक है। रैम क्या है, मेरे में 4 GB रैम है, ठीक है। रैम भी एक हार्डवेयर डिवाइस होता है, ठीक है। रैम भी बेसिकली स्पीड पर्पस के लिए होता है, एक हार्डवेयर डिवाइस है। तुम रैम को देख सकते हो, सीपीयू में अटैच रहता है मदरबोर्ड पे, ठीक है। 4 GB रैम है। जीबी में होता है रैम, 2 GB रैम, 4 GB रैम, 8 GB रैम, 16 GB रैम। जितना जीबी रैम रहेगा, उतना कंप्यूटर का स्पीड उतना ही अच्छा होगा। ओके, नाउ कम टू दिस पॉइंट। डेस्कटॉप कंप्यूटर में ज्यादा पावर हैज अ मोर पावरफुल प्रोसेसर, एडिशनल मेमोरी, रैम भी है इसमें, हार्ड हार्ड ड्राइव भी है, ठीक है। हार्ड ड्राइव में मीन्स ये स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। ये भी ये भी इट इज ऑल्सो हार्डवेयर डिवाइस ओनली, ठीक है। हार्ड डिस्क एक हार्डवेयर डिवाइस है जो प्रेजेंट रहता है हमारे कंप्यूटर में। उसका फंक्शन क्या है, उसका यूज क्या है, स्टोर करने के लिए डेटा, ओके। देन दिस वर्क स्टेशन बेसिकली किसके लिए यूज होता है, 3D ग्राफिक्स और गेम डेवलपमेंट के लिए। सी, अगर हमको गेम ये करना है, कुछ गेम डेवलपमेंट करना है या गेम कुछ प्ले करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमारा ग्राफिक्स अच्छा होना चाहिए, सिस्टम का ग्राफिक्स जो है ना वो अच्छा होना चाहिए। तो वर्क स्टेशन, बेसिकली वर्क स्टेशन इसलिए यूज होता है, 3D ग्राफिक्स और गेम डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। So multiple users can use single workstation altogether. See, multiple users, a figure, series figure. Multiple users are there here. One, two, three, four. Okay. Multiple users can use single workstation altogether. एक single workstation से multiple users can be connected. Okay. तो एक सिंगल वर्क स्टेशन से मल्टीपल यूजर्स हम लोग क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। एक सिंगल वर्क स्टेशन पे क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, ठीक है। तो वो पूरा इससे, ये पूरे 4 पीसी से सपोज कनेक्टेड है, तो ये 4 पीसी भी क्या कर पाएंगे, इसमें जो एक वर्क स्टेशन में जो इंस्टॉल है वो पूरे पूरे 4 पीसी जो भी है कनेक्टेड, दे कैन एक्सेस इट, ओके। अभी सी लाइक सी द एग्जांपल ऑफ ब्राउजर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर। व्हाट इज ब्राउजर? एनी आइडिया व्हाट इज ब्राउजर? वेब ब्राउजर, गूगल क्रोम जो हम लोग यूज करते हैं, गूगल क्रोम, ये सब जो यूज करते हैं ना हम लोग, टू सर्च ऑन द इंटरनेट, वी आर यूजिंग वेब ब्राउजर्स ओनली ना, लाइक गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ ब्राउजर्स ओनली। ये सब ब्राउजर है ना, ठीक है। तो when we are searching through the web browser, ठीक है, on the internet, so we are getting the results, right? Whatever we are searching, we are getting the results also. So from where we are getting the results? कहाँ से आ रहा है वो? बिकॉज समवेयर इट इज स्टोर्ड ना इन द डेटाबेस। कहाँ, कहीं पे तो स्टोर होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग एस वाई बैप सिलेबस, ओके, on the web page, on the web browser, okay. So if I am writing the S5 web syllabus, I will get the syllabus only na, relevant results of that, right? तो कहाँ से आ रहा है वो सब? बिकॉज कहीं पे तो डेटा स्टोर्ड है ना, गूगल के सर्वर पे डेटा स्टोर्ड है, जब भी देन ओनली आई एम गेटिंग द रिजल्ट्स ना। तो मीन्स एक गूगल का जो सर्वर है, यू कैन से डेटाबेस ऑल्सो, गूगल के सर्वर पे पूरा क्या है, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, ठीक है, राइट। तो एक गूगल के सर्वर से पूरा मल्टीपल जो यूजर्स है वो कनेक्टेड है,
all over the world through a network, right? You can consider this for workstation also. एक workstation से तो multiple users को connect कर सकते हैं. Like printer, ये प्रिंटर देखे होंगे ना तुम लोगों ने, प्रिंटर पता होगा. एक पीसी से अगर अगर तुमको कुछ प्रिंट करना, तो ऐसा नहीं है कि तुम एक ही पीसी से ले सकते हो. जो पीसी से प्रिंटर अटैच है तुम उसी से ले सकते हो, ऐसा नहीं है. ठीक है. थ्रू यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है, वो प्रिंटर का क्या, सिस्टम का क्या यूजर नेम एंड पासवर्ड है, वो सब एंटर करके, मतलब थ्रू थ्रू द सर्वर यू कैन कनेक्ट योर प्रिंटर विद द अदर सिस्टम आल्सो एंड यू कैन टेक प्रिंट आउट. वैसा है. सर्वर, बहुत बार तुम लोग सुने होंगे, सर्वर सर्वर डाउन है. बैंक के टाइम पे यू हैव हर्ड दिस, सर्वर डाउन है, कुछ ट्रांजेक्शन नहीं होता है, सर्वर इज डाउन. ओके. A computer server means computer ही है वो. A computer that has been optimized to provide services to other computers over a network. तो ऐसा कंप्यूटर जो किसके लिए है, अदर कंप्यूटर्स को सर्विस देने के लिए हम लोग उसको रेडी रखते हैं. ठीक है, ओवर अ नेटवर्क, इट इज कनेक्टेड विद द नेटवर्क. ओके. सर्वर में क्या होता है, पावरफुल प्रोसेसर्स रहना चाहिए. सर्वर में पावरफुल प्रोसेसर्स होना चाहिए, लॉट्स ऑफ मेमोरी होना चाहिए, बिकॉज उसका ड्यूटी यही है ना, टू प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर कंपोनेंट्स. ठीक है. तो उसकी मेमोरी भी अच्छी होना चाहिए, उसका हार्ड ड्राइव भी जो है स्टोरेज पर्पज के लिए होता है ना, जो हमारा हार्ड डिस्क है, वो भी इसमें पावरफुल होना चाहिए सर्वर में. ठीक है. मल्टीपल सीपीयूज एंड हार्ड ड्राइव में, मल्टीपल सीपीयूज होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स एंड हार्ड ड्राइव्स होते हैं. ठीक है. तो सर्वर, सर्वर अभी हमारे कॉलेज में भी देखो, लैब में सर्वर, एक सर्वर से पूरी पीसी कनेक्टेड है. बैंक में भी सर्वर होता है. ठीक है. तो सर्वर में जो इंफॉर्मेशन है वो कौन कौन एक्सेस कर सकता है, जितने भी उससे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, दे कैन एक्सेस इट. ओके. नाउ डेस्कटॉप. डेस्कटॉप क्या है, अब पीसी दैट इज जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं एट अ होम, दैट इज डेस्कटॉप ओनली. अब पीसी दैट इज नॉट डिजाइन फॉर पोर्टेबिलिटी. ठीक है. मीन्स पोर्टेबिलिटी मीन्स तुम उसको मूव नहीं कर रहे इधर उधर. डेस्कटॉप को क्या करते हैं हम लोग, जल्दी से मूव करते हैं क्या, ना टेबल वेबल पे कहीं पे हम उसको फिट कर देते हैं. ठीक है. तो अब पीसी, अभी लैपटॉप को हम लोग कहीं पे भी मूव करते हैं. ठीक है. प्लेस, लैपटॉप का प्लेस हम लोग कहीं पे भी लेके बैठते, पोर्टेबल है लैपटॉप. ठीक है. पर पीसी डेस्कटॉप क्या है, दैट इज नॉट डिजाइन फॉर पोर्टेबिलिटी, मूवमेंट नहीं करते हम लोग. ठीक है. जहाँ पे एक जगह पे उसको सेटअप कर दिया है, दैट इज डेस्कटॉप. जो हम लोग यूज कर रहे हैं दैट इज डेस्कटॉप ओनली. जैसे हमारे जो कंप्यूटर लैब में है कॉलेज में, और हमारे होम में भी कोई कोई यूज करता होगा, पता नहीं तुम्हारे पास है क्या. That is desktop only. Now everyone know what is desktop. Cyber cafe में भी जो रहता है, it is desktop only. Okay. You would set the computer up in a permanent location. Okay. Most desktops offer more power, storage and versatility for less cost than portable computers. ठीक है. Desktop में ज्यादा पावर होता है, स्टोरेज भी होता है क्योंकि हार्ड डिस्क प्रेजेंट होता है उसमें. ठीक है. एंड वर्सेटिलिटी फॉर लेस कॉस्ट देन पोर्टेबल कंप्यूटर्स. ओके. लेस कॉस्ट होता है इसका पोर्टेबल कंप्यूटर. पोर्टेबल कंप्यूटर क्या एग्जांपल होगा, लैपटॉप. लैपटॉप जो है वो पोर्टेबल कंप्यूटर ही है. ठीक है. लैपटॉप को यू कैन ऑल्सो कॉल नोटबुक, क्योंकि नोटबुक टाइप का ही है ना ये इसका स्ट्रक्चर. लैपटॉप और पोर्टेबल कंप्यूटर्स दैट इंटीग्रेट द डिस्प्ले. डिस्प्ले है इसमें, कीबोर्ड है, एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है और ट्रैक बॉल यू कैन से, प्रोसेसर होता है उसमें, मेमोरी होता है, हार्ड डिस्क होता है. प्रोसेसर हार्डवेयर डिवाइस है. ठीक है. स्पीड के लिए अभी मैंने दिखाई, मेरे पीसी का प्रोसेसर कौन सा, इंटेल कोर 2 डीओ है. ठीक है. हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस है. मेमोरी होता है. ठीक है. मेमोरी फॉर एग्जांपल हार्ड मेमोरी, तुम्हारा मेमोरी का भी टाइप है, वी विल सी लेटर ऑन. यू कैन कंसीडर हार्ड डिस्क भी एक टाइप का मेमोरी है. ठीक है. और इन्हें बैटरी ऑपरेटेड पैकेज, लैपटॉप में ये सब प्रेजेंट होता है. ठीक है. ये तो डेस्कटॉप में भी प्रेजेंट होता है, कीबोर्ड होता है, हार्ड डिस्क होता है, रैम होता है. ठीक है. बहुत सारे पार्ट्स है, हार्डवेयर, हार्डवेयर पार्ट्स बहुत सारे हैं. पावर सप्लाई होता है.
ठीक है, मदरबोर्ड होता है. वी विल सी लेटर ऑन व्हेन वी विल स्टार्ट दिस ये पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. ओके, एट दैट टाइम वी विल सी. नाउ पाम टॉप क्या है? मोस्ट कॉमनली नोन एज, को पीडीएस भी बोल सकते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट. ठीक है, पाम टॉप आर टाइटली इंटीग्रेटेड कंप्यूटर्स that often use flash memory instead of a hard drive for storage. See, ये पाम टॉप का फिगर है. पाम टॉप में क्या होता है? फ्लैश मेमोरी होता है इंस्टेड ऑफ हार्ड ड्राइव. अभी हार्ड ड्राइव का यूज क्या है? फॉर स्टोरेज पर्पस. जो हार्ड डिस्क है, सी मेरे में कितना है, यू कैन. ठीक है, यहाँ पे ये जो दिखा रहा है 210 GB फ्री ऑफ 334 GB, 250 GB फ्री ऑफ 298 GB. ये क्यों? ये स्टोरेज मेरा किस पे डिपेंड है? मेरा हार्ड डिस्क का उतना कैपेसिटी है. ठीक है, हार्ड डिस्क का बता रहा है ये मेरा. यूजुअली हाँ. सी, पाम टॉप में क्या होता है? फ्लैश मेमोरी यूज होता है इंस्टेड ऑफ हार्ड ड्राइव. फ्लैश मेमोरी यूज होता है. ठीक है, यूजुअली इसमें कीबोर्ड्स नहीं होते, क्योंकि कीबोर्ड से क्या होता है? स्पेस ज्यादा हो जाता है. ये पाम टॉप है ना, तो ये इसका साइज स्मॉल होगा. ठीक है, तो यूजुअली डू नॉट हैव कीबोर्ड्स बट रिलाई ऑन टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी फॉर यूजर इनपुट. टच स्क्रीन टाइप होता है ये. A slightly larger heavier version of the palm top is the, इसका हाइयर मतलब हेवियर वर्जन कौन सा है? हैंडहेल्ड कंप्यूटर. छोटा सा दिख रहा है ये, जो इजीली मतलब हैंड में यू कैन कैरी इट. हैंडहेल्ड कंप्यूटर, लाइक टैबलेट तुम लोग यूज करते होंगे. ओके, so what we have covered? Digital computers types. Okay, super computers, mainframe computers, workstation computers, server, okay, and desktop, laptop, handheld. Okay. Okay, is it clear to all? Any queries? Now the next topic will be parts of computers. I will share the PPT in Google Classroom. No need to take screenshot. Screenshot mat lo. I will share this PPT. See, those who have not joined Google Classroom, they can join now. I'm sharing the screen. Just wait. Manan Prakashan, you can purchase. Manan Prakashan. IT full form, Information Technology. See, I have uploaded also video lecture of 21st June and Introduction to Computers. The PPT भी है, ठीक है? So those who have not joined, they can join now.
Invitation link I am posting in the chat box. Directly you can join by clicking on this link. Or either if this link is not working, you can enter this code. Take the screenshot of this page. You can take invitation link is there and the class code. I have posted this on chat box also. Information means collection of data only. Na? Information is data. Technology means we are using technology. Technology means we are using computer, we are using networks, okay, for passing information. That is technology only. Okay, then who asked? Shaida Noor. Okay. Okay, parts of computer. See, central processing unit CPU जो हमारा ये होता है ना CPU, वो किस में डिवाइडेड है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. ओके, so first you will see what is input device. कि CPU किसको बोलते हैं? The heart of any computer is a CPU. We are saying that CPU क्या है? It is the heart of any computer. Okay, it is a central processor that makes comparisons, performs calculations, read, interprets and controls the execution of the instructions. ये सब CPU का काम होता है. It consists of 3 separate subunit. CPU में प्रेजेंट क्या क्या है? कंट्रोल यूनिट है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट प्रेजेंट है, मेमोरी प्रेजेंट है. मेमोरी दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. ठीक है, ये सब हम लोग देखेंगे अभी क्या है. लेट्स स्टार्ट विद इनपुट डिवाइस ओनली. इनपुट डिवाइस क्या है? सी input device means input is any data instructions entered into the memory of a computer. ठीक है, जो हम लोग इनपुट देते हैं, इट इज नॉट आउटपुट. हाँ, इनपुट. जैसे अभी कीबोर्ड एग्जांपल है इनपुट डिवाइस का, जहां से हम लोग इनपुट देते हैं. मॉनिटर क्या है? एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस. ठीक है, कीबोर्ड से इनपुट जाता है, मॉनिटर पे उसका आउटपुट आता है. वॉट एवर वी आर गिविंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम कीबोर्ड, वी आर गेटिंग द आउटपुट ऑन मॉनिटर. तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है और कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है. ठीक है, तो जहां से हम लोग डेटा देते हैं वो दैट इज इनपुट डिवाइस. ठीक है, अभी कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, पेन ड्राइव जो है, माइक्रोफोन जो है, ये सब तुम्हारा इनपुट डिवाइस है. ठीक है, तो इनपुट डिवाइस मीन्स एक एंट्री करता है, एंट्री ऑफ डेटा इनटू अ कंप्यूटर. ठीक है, एंट्री ऑफ डेटा इनटू अ कंप्यूटर, वो तुम्हारा इनपुट डिवाइस हो गया. ठीक है, एग्जांपल्स क्या है? कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड से हम लोग डेटा एंट्री करवाते हैं. कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव, माइक्रोफोन, ये सब क्या है? दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइस. ठीक है,
So I am stopping here now because less than 1 minute is remaining.